ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று ஹனுமத் ஜெயந்தி. நாம் இன்று ஸ்ரீ சுதர்சன சம்ஹிதையில் உள்ள ஸ்ரீ ராமரும் சீதையும் இணைந்து கூறிய அதிசக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ பஞ்சமுக ஹனுமன் கவச்சம் பார்க்கலாம். இது ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியே தனது வாயால் கூறியதால் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. இதனால் கிடைக்கும் பலன்கள் அபாரமானது. ஒரு முறை சொல்வதால், 2 முறை சொல்வதால், 3 முறை சொல்வதால் என்று இதன் பலனே நீண்டு பலஸ்ருதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் எவ்வளவு அற்புதமான சக்தி வாய்ந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். இதை இந்த ஹனுமனின் அவதார தினத்தில் சொல்வது விசேஷ பலன்களை பெற்றுத்தரும். முதலில் நாம் பஞ்சமுக ஹனுமனின் சிறப்பை அறிந்து கொண்டு பின் ஹனுமன் கவச்சம் பாராயணம் செய்யலாம். வாயு மைந்தனாக ஸ்ரீராமனின் சேவகனாக சிவபெருமானின் அவதாரமாக இருப்பவர் ஆஞ்சநேயர். ஹனுமனை வணங்கினால் அனைத்து தெய்வங்களின் ஆசையும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. ராமாயண போரில் ஸ்ரீராமரை போரில் வெற்றி பெற முடியாது என்று நினைத்த ராவணன் மயில் ராவணன் என்ற அசுரன் மூலம் ராமனை அழிக்க திட்டமிட்டான். ராவணனின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க மயில் ராவணனும் ராம லக்ஷ்மணனை கொல்ல யாகம் ஒன்றை நடத்த திட்டமிட்டான். இதை அறிந்த விபீஷணன் இந்த யாகம் நடந்தால் ராமர் லக்ஷ்மணர் உயிருக்கு ஆபத்து வரும் என்பதை உணர்ந்து இதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று ராமரிடம் கேட்டுக்கொண்டார். ராமரும் ஆஞ்சநேயரிடம் இதை கூறி யாகத்தை தடுத்து நிறுத்தும்படி உத்தரவிட்டார். அவரும் ஸ்ரீ நரசிம்மர், ஹயக்ரீவர், வராகர், கருடன் ஆகியோரின் ஆசி வேண்டினார். அவர்கள் தங்களது சக்தியை ஆஞ்சநேயருக்கு வழங்கினார்கள். அவரும் பஞ்சமுக விஸ்வரூபம் எடுத்து மயில் ராவணனை வதம் செய்தார். பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயரை வணங்கி வந்தால் இன்னல்கள் நீங்கும். நம்மை பிடித்த பிணி, பீடை, கெட்ட கனவு உள்ளிட்டவை நீங்கும். இந்த ஸ்ரீ பஞ்சமுக ஹனுமன் கவச்சம் சகல நோய்களுக்கும் அருமருந்தாக விளங்குகிறது. எதிரிகளையும் அழிக்க வல்லது. பக்தியுடன் இருமுறை சொல்ல வம்ச விருத்தி தரவல்லது. 3 முறை சொல்ல சகல சம்பத்துகளையும் அளிக்கக்கூடியது. 4 முறை சொல்ல தீராத ரோகத்தையும் தீர்க்கிறது. 5 முறை சொல்ல உலகமே உங்களுக்கு வசப்படுமாம். 6 முறை சொல்ல தேவர்களும் உங்கள் வசமாவர். 7 முறை சொல்ல சர்வ சௌபாகியத்தையும் அடைவார்கள். ஒருவரது ஆசைகள் மற்றும் குறிக்கோள்கள் நிறைவேற இந்த மந்திரத்தை ஒருவர் தினமும் 8 முறை சொல்ல வேண்டுமாம். இதை தினமும் தொடர்ந்து பக்தியுடன் 9 முறை சொல்வதால் அரசனை போன்ற ராஜபோக வாழ்வு கிடைக்குமாம். மூவுலகை அறியவும் தரிசனம் செய்யவும் இந்த மந்திரத்தை ஒருவர் தினமும் 10 முறை சொல்ல வேண்டும். இதை தினமும் தொடர்ந்து பாராயணம் செய்பவர்கள் நிச்சயமாக அனைத்து பரிபூர்ணங்களையும் அடைவார்கள். அவர் பலவீனமாகவும் கடுமையான நோயுற்றவராக இருந்தாலும் சரி, ஹனுமனையும் இந்த ஹனுமனுடைய கவச்சத்தையும் நினைத்தாலே போதும், அவர் பெரும் பலத்தை அடைவார். அவருக்கு ஹனுமன் பெரும் பலத்தை தருவார் அப்படின்னு இந்த கவச்சத்தோட பல ஸ்ருதி சொல்றது. நாம இப்போ கவச்சத்தை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பஞ்சமுக ஹனுமத் கவச்சம். ஸ்ரீ கணேஷாய நமக. ஸ்ரீ உமா மகேஸ்வராபியாம் நமக. ஸ்ரீ சீதாராமச்சந்திராபியாம் நமக. ஓம் ஸ்ரீ பஞ்சவதனாயாஞ்சநேயாய நமக. ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ பஞ்சமுக ஹனுமன் மந்திரஸ்ய பிரம்மா ரிஷிஹி காயத்ரி சந்தக பஞ்சமுக விராட் ஹனுமான் தேவதா ஹ்ரீம் பீஜம் ஸ்ரீம் சக்திஹி க்ரௌம் கீலகம் க்ரூம் கவச்சம் க்ரைம் அஸ்த்ராய பட் இதி திக்பந்தக. ஸ்ரீ கருட உவாச்ச அத தியானம் பிரவக்ஷ்யாமி ஸ்ருணு சர்வாங்க சுந்தரி யத்கிருதம் தேவதேவேன தியானம் ஹனுமதः பிரியம் பஞ்சவக்த்ரம் மகாபீமம் த்ரிபஞ்சநயனைர்யுதம் பாஹுபிர்தசபிர்யுக்தம் சர்வகாமார்த்த சித்திதம் பூர்வந்து வானரம் வக்த்ரம் கோட்டி சூரிய சமப்பிரபம் தன்ஷ்ராகராலவதனம் பிருகுட்டிகுட்டிலேக்ஷணம் अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जगान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं
मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टन्तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय कराळवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादि वराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्रऋषिः अनुष्टुप्छन्दः पञ्चमुखवीरहनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत्। ॐ अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पञ्चमुखहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ॐ अञ्जनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हूं। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ पञ्चमुखहनुमते अस्त्राय पट्। पञ्चमुखहनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानं वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिकेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खड्वाङ्गं पणिबूरुकं दशभुजं सर्वारिवीरापकम्। ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुणसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनि सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महापाल्गुणसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 बौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय पं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय कें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षितसकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय दन् 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 दं शत्रुस्तम्भनाय
स्वाहा। ॐ टन् 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 टं कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ खं खं गं गं ञं छं छं जं जं ञं ठन् ठन् ढन् ढं नं थन् थन् धन् धं नं पं फं भं भं मं यं रं लं वं शं सं हं लं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टन् ठन् 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 ठं सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते कराळवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिन्यन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।